ٹی بی کے مریضوں کے لیے نئی مشکل، لاہور سمیت تمام اضلاع میں ٹی بی کی ادویات نایاب ہوگی۔ مریض ادویات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، مریضوں کے ٹی بی کورسز متاثر ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے۔ بڑے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری، نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب ہاؤس کراچی کا لان تقریبات کے لیے کرائے پر دینے کا فیصلہ۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 میں ترمیم، میڈیکل کمشنرز کو 4 سال سے پہلے نکالنے کی راہ ہموار۔ نئی ترمیم کے بعد ڈاکٹرز بھی کمشنرز کے عہدے پر تعینات ہو سکیں گے۔ کمشنرز نے کمیشن ایکٹ میں حکومتی ترامیم پر سوالات اٹھا دیے۔ نگران پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، لاہور سمیت 9 میونسپل کارپوریشنز کی سربراہی کمشنر سے واپس لے لی۔ میونسپل کارپوریشنز کی سربراہی ڈپٹی کمشنرز کو سونپ دی گئی۔ لاہور نے 15 ستمبر کو میونسپل کارپوریشن کے اختیارات کمشنر سے واپس لینے کی خبر نشر کی تھی۔ ڈینگی کا پھیلاؤ بڑھنے لگا، شہر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 56 نئے مریض رپورٹ۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 52 مریض زیر علاج ہیں۔ ٹی بی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسداد ڈینگی کے لیے اکتوبر کے مہینے کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ کہا کہ جس محکمے کا مین ہول کھلا ہوگا اس کے متعلقہ افسر پر مقدمہ درج ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نشتر زون ڈاکٹر مشتاق کی پولیو مہم میں ناقص کارکردگی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کا ڈاکٹر مشتاق کو شوکوز نوٹس جاری، 3 دن میں جواب طلب کر لیا۔ مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی پی پی 168 کا احتجاج۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے ہمارا قومی نشان چاند تاریخ کی بجائے کشکول بن چکا ہے۔ 70,000 ارب قرض کی ہتھکڑیاں عوام کو پہنا دی گئیں۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی پھر سڑکوں پر، 15 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا فیصلہ۔ دھرنا جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے دیا جائے گا، خواتین رہنماؤں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ ریلوے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج، کلاس 4 اور ٹی ایل اے ملازمین کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم، کہتے ہیں تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو گیا، بجلی کے بھاری بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعظم کا آئندہ چند روز میں سعودی عرب جانے کا امکان، ممکنہ طور پر 4 سے 5 روز قیام شیڈیول۔ عمرہ ادائیگی کے بعد شاہی خاندان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر قانون کے تحت جیل جانا ہوگا۔ فوجداری قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے نون لیگ کے قائد کو ریلیف دینے کا فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے۔ صدر نون لیگ میاں شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، پارٹی قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا، ملکی صورتحال اور انتخابات کے امور بھی زیر غور آئے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کیا، لوگ پوچھتے ہیں 16 ماہ میں کیا کیا۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ صدر نون لیگ شہباز شریف نے ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں مزید تیز، استقبال کے حوالے سے جلوس اور ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری۔
NA 135 में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सदर नून लीग लाहौर सैफ उल-मुलूक खोखर ने तैयारियों का जायजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज आज जलसे से खिताब करेंगी। गाजी मोहम्मद रियाज नायब सदर मुस्लिम लीग काफ सेंट्रल पंजाब मुकर्रर। मुस्लिम लीग हाउस में ओहदेदारों को नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि इंतखाबात जब भी हों हमारी तैयारी मुकम्मल है। मुल्क में नजरियाती सियासत की बजाय मफादात की सियासत की जा रही है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत सिर्फ अपने मामलात को ठीक करना जानती है, आवाम के बारे में नहीं सोचा। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जो हो रहा है ना वो हो रहा है ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी एक ऑपरेशन ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो काम किए जा रहे हैं जो कि ना जमहूरियत के अंदर नज़र आते हैं ना सियासत के अंदर नज़र आते हैं। इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है कि दूसरी जमात के हाथ बांध दिए जाएँ। अफगान सरजमीन को भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत खित्ते में बदअमनी और फसाद चाहता है, हमें मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने आपकी आज़ादी खुद मुख्तारी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ आपके साथ ताउन नहीं किया, खून भी दिया है। आज भी हम आपका अफगानिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए। रियासत पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वो अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करे, जैसे अफगानिस्तान को हक हासिल है कि वो अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करे। इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे। वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है। वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मयारी बीज का है। जब तक रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक नहीं होंगे बेहतरी नहीं आएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रिसर्च इंस्टीट्यूट को ठीक करेंगे, गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए इदारे काम कर रहे हैं। कॉटन डे की हमने जो सेरेमनी है आप लोगों के साथ आज तकरीबन 11 साल के बाद हम पंजाब में मना रहे हैं। और ये 11 साल पहले जब मनाया था तो उस वक्त पंजाब की क्रॉप उस साल 80 लाख बेल हुई थी। आज मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने जब जनवरी के अंदर जो है वो केयर टेकर सेटअप के अंदर जो है वो ज़िम्मेदारी संभाली, तो हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये थी कि पंजाब जो कि 1-1 करोड़ गठरी देता रहा है साल की, उसकी क्रॉप 33 लाख रहेगी। निगरान वज़ीर आला से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात हुई। सदर और बोर्ड अरकान ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब में गंदम का 600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। 5000 सरकारी स्कूल्स NGOs को देने की तैयारी। सूबाई वज़ीर मंसूर कादर, मुशीर वज़ीर आला पंजाब कंवर दिलशाद और चीफ सेक्रेटरी कमेटी में शामिल। कमेटी स्कूल्स की हवालगी के बारे में सिफारिशात पेश करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राहत चीमा के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस केस। एहतसाब अदालत ने नए मुलजिमों को फर्द जुर्म के लिए तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएगी।
लाहौर को गैर मयारी खुराक से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर कहते हैं, सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी टीमें फूड आइटम्स के रोज़ाना 2000 से ज़ायद सैंपल्स हासिल करती हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा, सुबह भर से मौसूल होने वाली शिकायत और अजाले के अमल का जायजा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, आरपीओज और डीपीओज भी मॉनिटरिंग बेहतर बनाएं। डीआईजी ऑपरेशन शहर को असलह से पाक करने के लिए पुरअज़्म। रवां साल असलह एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 741 मुकदमात दर्ज किए। मुलजिमान से 80 कलाशनकोव, 508 राइफल्स और 313 बंदूकें बरामद की गईं। अली नासिर रिजवी ने कहा कि डाला कल्चर और असलहा नुमाइश की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले, उस्मान अकरम गोंदल डीआईजी ऑपरेशन सीटीडी लाहौर तैनात। अब्दुल गफ्फार केसरानी को SNJAD रिपोर्ट करने का हुक्म। SP नसीबुल्ला खान डीपीओ बहावलनगर, अहमद मुहियुद्दीन डीपीओ DG खान तैनात। राना सुहेब महमूद PSO2 IG पंजाब मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। शहर में जराइम पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत मुतहरिक, पहली बार महकमे में डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड की तैनाती। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तैनात किए गए। लियाकत अली मलिक इस पहले डीआईजी लीगल CPO ऑफिस तैनात थे। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का CBD हेडक्वार्टर्स का दौरा, CEO रूडा इमरान अमीन ने ट्रांजिट प्लान के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने रूडा और CBD हुकाम के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट मंसूबों को सराहा। सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा का टेफ्टा अपेरेंट्सशिप जौहर टाउन का दौरा किया गया। प्रिंसिपल के हमरा इदारे के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना भी किया। सेक्रेटरी एहसान भुट्टा की जारी तज़ीनो आराइश के काम को मुकम्मल करने की हिदायत। कैंट स्टेशन के इलाके में कब्जा माफिया के खिलाफ रेलवे का बड़ा ऑपरेशन, 79 करोड़ 20 लाख रुपए की कमर्शियल जमीन वागुजार करा ली। 8 दुकानें सील, रेलवे की जमीन पर कब्जा करने पर CNW बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी नोटिस जारी कर दिया गया। पंजाब गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुल गए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम शहरियों का गवर्नर हाउस का दौरा। शुरका ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और तारीखी इमारत का दौरा किया। मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए मतरूका वफ़्द इमलाक और महकमा औकाफ का बड़ा इक़दाम। पंजाब में मजहबी मकामात की अपग्रेडेशन का फैसला। मंदिरों, गुरुद्वारों, मज़ारों और ज़ायरीन की गुज़रगाहों की अपग्रेडेशन की जाएगी। चौथी सालाना इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन और पहली एलाइड हेल्थ साइंसेस कॉन्फ्रेंस। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ख़ुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डीन, प्रोफेसर, असातिज़ाए कराम और सुपीरियर यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेस भी शरीक हुए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 21वां कॉन्वोकेशन, 350 तलबा ने ग्रेजुएट्स होने का एजाज़ हासिल किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत। तलबा में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और तारीफी असनाद तकसीम की। रहीम स्टोर इकबाल टाउन में रबी अव्वल की मुनासबत से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का 21वां रोज़। बैरिस्टर अली रज़ा चौधरी, सलीम गुज्जर और वहाज सुहेल खान की ख़ुसूसी शिरकत। पूरा अंदाजी में मोहम्मद हमाद और साइमा खालिद ने उम्रा के टिकट जीते। सवालों के दुरुस्त जवाब देने पर पुराने पाक के तहाइफ तकसीम। और यौम दिफा ख्वाजा सईद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में राना इरफान और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी फाते रही। तीसरे मैच में जहां ज़ेब नज़ीर और सखी सरवर की जोड़ी ने फतह समेटी।